بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کا اردو کا معلم سلک اسکول آف ٹمارو، سٹی کیمپس پھلوار۔ یہ اردو کی کتاب 7ویں جماعت کی اور باب نمبر 1 حمد ہے، اور اس کا پہلا لیکچر ہم شروع کرنے لگے ہیں۔ جی عزیز طلباء و طالبات، یہ آفاق سن سیریز کا نیو ایڈیشن ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتاب کتنے اسباق پر مشتمل ہے؟ جی یہ 23 اسباق پر مشتمل ہے، اور اس کتاب میں ہم دلچسپ نظمیں اور نثری اسباق پڑھیں گے۔ آپ کتاب کی فہرست میں لکھے گئے عنوانات کو غور سے پڑھیں، اور ان عنوانات میں سے جو 3 دلچسپ عنوانات آپ کو لگیں، آپ نے وہ اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ تو کتاب کے بارے میں کچھ بتا دوں کہ کتاب کے صفحات کو احتیاط سے پلٹنا چاہیے، کتاب سے پیار کرنا چاہیے، کیونکہ کتاب ہمارا بہترین ساتھی ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارا سبق حمد ہے۔ تو جب بھی عزیز طلباء و طالبات آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں، آپ کے ذہن کے اندر مختلف قسم کے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو آس پاس نظر آ رہی ہیں، یہ کس نے بنائی ہیں؟ اور جواب بھی پھر یقیناً آتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں، تو ہمیں ان احسانات کے جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ جی تو ہمیں اس نظم کے اندر جس کو حمد کہتے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے حمد کسے کہتے ہیں؟ جی یہ وہی بات ہے جو ارد گرد کی چیزوں کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں آتی ہے، یعنی ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے۔ ہم نے بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے، تو کیوں نہ ہم بھی حمد پڑھیں۔ جی تو اس پوری کائنات کا مالک کون نظر آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے۔ جی اللہ کائنات کا مالک و خالق ہے۔ اس کے بعد یہ جو پوری دنیا ہے، اور دنیا کے بعد آخرت ہے، جس کو دنیا و عقبہ کہتے ہیں، اس دنیا اور آخرت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بلند ہے، خداوند کریم کی ذات بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خوبیوں میں، اپنی ذات میں یکتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے واحد۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اللہ کی شان میں اس کے ساتھ شامل نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر بہت بلند ہے، جی بلند و بالا ہے۔ خداوند کریم کی خوبیاں بے شمار ہیں، بہت زیادہ ہیں، اتنی ہیں کہ ان کا شمار ہی ممکن نہیں ہے۔ خداوند کریم کا جو نور ہے وہ ظاہر ہوتا ہے کس میں؟ چاندنی کے اندر۔ ہم جب بھی چاندنی دیکھتے ہیں تو خداوند کریم کا نور ہوتا ہے۔ اسی طرح ستاروں میں بھی خداوند کریم کا جلوہ نظر آتا ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، حمد میں ہم نے یہ دیکھا کہ حمد اللہ کی تعریف کو کہتے ہیں۔ اس پوری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے۔ اللہ اپنی ذات میں واحد ہے، اللہ کا ذکر بلند ہے، اتنی خوبیاں ہیں کہ جن کو بیان نہیں ہو سکتا۔ بھئی کیوں نہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں بات کی جائے۔ خداوند کریم نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ جی تو اللہ نے سب سے پہلے یہ جو زمین کا بچھونا ہے، یہ اللہ نے ہمارے لیے بنائی۔ تو سب سے بڑا جو اللہ کا احسان ہے وہ اللہ نے زمین بنائی، ہمیں بھی بنایا، اور ساتھ میں سبزے کو اگایا۔
सब्जा हमारी आंखों को तरावत देता है। इसके साथ दरख्त अल्लाह ताला ने उगाए और आप अपने आसपास देखते हैं, आपको चुनिंद नजर आते हैं, परिंद नजर आते हैं, अनवाओ अकसाम के हैवान नजर आते हैं। ये सारे के सारे खुदावंदे करीम ने हमारे लिए बनाए हैं कि हम इनसे इस्तिफादा कर सकें। तो अजीज तुलबा और तालिबात, हम सबक नंबर 1 हमद की पढ़ाई की तरफ चलते हैं, लेकिन कुछ बातों का ख्याल रहे। आपने इस इबारत को रवानी से पढ़ना है, फिर उसके जीरो बम का ख्याल रखना है, लहजे का ख्याल रखें और शिद्दत और रफ्तार के साथ पढ़ें। जी तो मेरे साथ पढ़ें। खुदाई के मालिक, दो आलम के मौला, तेरी जात आली, तेरी शान यकता, तेरा जिक्र बाला, तेरा हुस्न आला, सिफ्त तेरी रब्बे तबारक ताला। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी नज़्म है अल्लाह की तारीफ के हवाले से। क्यों ना हम इस पहले बंद को हम इसके मफहूम भी बयान करें और साथ में मुश्किल अल्फाज के मानी भी। खुदाई दुनिया, ठीक है, मालिक आका। अब दो आलम जो है इसको दुनिया व अक़बा भी कहेंगे। जी मौला का मतलब फिर वही मालिक। तेरी ज़ात आली, आली होता है बुलंद। तेरी शान यकता, यकता होता है वाहिद, अकेला। यानी इस पूरे शेर में शायर ने अल्लाह ताला के बारे में फरमाया कि अल्लाह ने दुनिया बनाई है, ना सिर्फ दुनिया बल्कि आखिरत भी बनाई है, और अल्लाह की ज़ात बहुत बुलंद है और आपकी शान वाहिद है, कोई उसमें शरीक नहीं है। तेरा जिक्र बाला, बाला फिर बुलंद को कहते हैं। तेरा हुस्न आला, सिफ्त खूबी को कहा जाता है। सिर्फ तेरी रब्बे तबारक ताला, कि तेरी खूबी, तेरे कमालात सिर्फ तू ही जानता है, हमारी तो मजाल नहीं कि हम आपकी खूबी बयान कर सकें। जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत। तो क्यों ना हम अब अगले जो बंद है उसको पढ़ें। तेरा नूर जलवा फिगन चांदनी में, सितारों में खुर्शीद की रोशनी में, ज़मी का हसी फर्श तूने बनाया, सुकून बख्श आलम ये सब्जा उगाया। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह। अब इस पूरे बंद की हम मुश्किल अल्फाज के मुआनी और साथ में तशरीह करेंगे। तेरा नूर जलवा फिगन, जलवा फिगन कहते हैं जाहिर को, नमूदार होना, जाहिर। सितारों में खुर्शीद, खुर्शीद सूरज को कहा जाता है। ज़मी का हसी, हसी होता है खूबसूरत। फर्श बिछोना, सुकून बख्श ऐसी चीज जो फरहते जां हो, सुकून बख्श फरहते जां। आलम दुनिया को कहते हैं। जी तो सारे पूरे बंद का क्यों ना हम मफहूम बयान करें। शायर इस बंद में अल्लाह ताला को मुखातिब करते हुए कि ऐ अल्लाह, तेरा ही नूर जाहिर है चांदनी के अंदर, सितारों में भी और सूरज की रोशनी में भी। ये जो ज़मीन जो हमारे लिए बचोना है ये आपने बनाई है, ये बहुत खूबसूरत है। और ये जो सब्ज़ा है जो हमारी आंखों को तरावत देता है और सुकून पहुंचाता है दुनिया में, ये आपने बनाया है। बहुत खूबसूरत अंदाज से ये पूरा जो हम्द है इसको बयान किया गया है। तो अब आप लोग आ जाएं मश्क पे और सफ़ा नंबर 5 निकाल लें और आपको पता चलेगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये सवाल नंबर 7 है। दी हुई अल्फाज की जोड़ियों की शनाख्त करें। ये जोड़ी है पहली, इसकी शनाख्त करें और दुरुस्त तसव्वुर पर टिक का निशान लगाएं। तो पूछा गया मुतजाद है या मुतरादफ है, तो जो ठीक होगा उस पर हम टिक का निशान लगाएंगे। जी तो खुर्शीद और महताब, खुर्शीद भी सूरज को कहते हैं, महताब भी सूरज को कहते हैं, तो ये एक जैसे अल्फाज है तो ये मुतरादफ होंगे। जी दूसरी जो जोड़ी है अर्श फर्श, अर्श आसमान को कहते हैं, फर्श जमीन को कहते हैं, तो ये उलट है। उलट मीन मुतजाद, तो मुतजाद को हम टिक करेंगे। गीत और नगमा तीसरी जोड़ी, ये एक जैसे दोनों अल्फाज हैं, मुतरादफ होंगे। जाड़ा और गर्मी, जाड़ा कहते हैं सर्दी को और गर्मी, तो ये मुतजाद है। जी मालिक आका, मालिक भी मौला और आका होता है, तो ये मुतरादफ होंगे।
सुलाना, जगाना, ये तो आपको पता चल गया। मुतज़ाद। इसके बाद हमने क्या करना है जी, हमने होमवर्क करना है, और होमवर्क के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे दिन लिखना है, तारीख लिखनी है, घर के काम को टिक करना है, और आपका उन्वान हम्द है, खूबसूरत तरीके से हम्द लिखें। तो सवाल नंबर 1 जो है, अलिफ है आपका, वो क्या है, खुदाई से क्या मुराद है। तो इसका जवाब आपने यहाँ पे लिखना है, और डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूंगा, और जवाब आप लोग अपने अल्फाज में खुद लिखेंगे। ये जो सारी दुनिया है, ये जो ज़मीन है, इसमें रहने वाले जो चुरिंद परिंद तमाम चीज़ें हैं, ये अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है, ये सारी खुदाई है। तो यहाँ पे अल्फाज, नेक्स्ट जो सफ़ा है वहाँ पे अल्फाज मुआनी होंगे, तो आपने यहाँ पर भी उसी तरह दिन, तारीख, घर के काम, हम्द और अल्फाज मुआनी, बीच में लाइन और मुआनी। जी, जो पहला लफ्ज है वो है यक्ता। यक्ता का मतलब वाहिद, एक भी आप लिख सकते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूँ अल्लाह ताला एक है। सिफ्त खूबी को कहते हैं। जलवा फिगन, अजीज तुलबा तालिबात, ये लफ्ज फिगन है, इसको फगन नहीं पढ़ना है, जलवा फिगन। और जलवा फिगन का मुआनी मैं आपको बता चुका हूँ, जाहिर, आप नमूदार भी लिख सकते हैं। आलम, दुनिया, और सुकून बख्श, फरहते जां, ऐसी चीज जो आपको सुकून देती है। जी, तो अजीज तुलबा व तालिबात, ये आपका उर्दू का पहला सबक हम्द के बारे में। आपने जो कुछ पढ़ा आज, वो आपने अपने घर में अपने वालिदैन के साथ और अपने भाई के साथ ये उनको बताना है कि अल्लाह ताला ने हमें कौन कौन सी नेमतें अता की हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।